اچھا جناب، ایکس ہندو امیتا جی بھائی، سسٹر ہیں شاید یہ. آپ کا مائک میوٹ ہے سسٹر، آپ کا مائک میوٹ ہے. نام تو انہوں نے آدم سیکر لکھا ہوا ہے اپنے یوٹیوب پر، یہ کیا چکر ہے؟ کرسچن بن گئی ہوں گی. جی وہ مفتی صاحب وہ کام کر رہا ہے، کنورٹ کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں کافی کر چکا ہوں کافی ہندوؤں کو، اور کچھ کو میں نے پلان کیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مائک کھل گیا. کرسچن ہو گیا. جی آپ کا چٹا مائک والے مفتی وجیدی بھوسا دیکھا، یہی مجھے معلوم تھا. مجھے معلوم تھا کہ کچھ اس طرح کا ہی ہوگا. بیچارے کتنے میں نے اس لیے ڈیسپریٹ ان کو بالکل ریموو پہ میں نے کلک کر کے رکھا تھا کہ کچھ بولے اور باہر نکلے. اچھا، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والا شکست کھا چکا ہے. بے شک. اور وہ یہ کہ جب وہ اس طرح کی لینگویج پر آ جائے نا کہ اس کے پاس پھر کچھ نہ بچے، وہ صرف پرسنل اٹیک کرے اور وہ بھی اس انداز سے، تو سمجھ لیجیے کچھ نہیں بچا، تو سمجھ لیجیے بڑھ گیا. بڑھ گیا. مفتی صاحب ویسے بھی ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ آپ جیسے علماء کا مقابلہ کر سکیں، سامنے ہی بیٹھ سکیں؟ اس حد تک وہ خبیث لوگ ہیں. وہ ان کی لینگویج ویسے بھی نہیں وہ سیریسلی اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ کس کی کیا حیثیت ہے. اصل یہ ہے کہ آپ دلائل کے ساتھ آئیں. گالیوں کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سامنے والے شخص کو یہ مان لیا کہ بھائی آپ ہی گریٹ ہیں، آپ ہی صحیح ہیں، میرے پاس گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں، میں صرف آپ کو گالیاں دے سکتا ہوں. تو چلیے خیر ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں تو ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہیں. اچھا جی، ابو شاکر صاحب کچھ مائک وائک میں ایوولوشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کچھ فرق پڑا. اچھا جی مفتی صاحب پہلے تو آپ سے تھوڑا سا میرا ایک ڈس ایگریمنٹ ہے، اور اس کے بعد ایگریمنٹ تو بہت بڑا ہے. نہیں، آپ کے سامنے چھوٹا سا، اس وقت چھوٹا. اچھا جی، اس کے بعد حضرت محمد پہ اعتراض میرا ہوگا. جی اچھا، ایک منٹ رک جائیں. عاصم افتخار صاحب تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے عاصم بھائی؟ بڑے دنوں کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سب بخیر ہوں. جی تھوڑی مشغولی تھی، میں اپنی اسٹریم بھی نہیں کر پا رہا تھا لاسٹ ویک سے، پھر الحمدللہ ایکٹیو ہو گیا. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یہ چھوٹا سا اعتراض ابو شاکر صاحب کر رہے ہیں. جی فرمائیے ابو شاکر صاحب. آپ ڈسکس کر رہے تھے پہلے کہ آپ نے اکنالج کیا ہے کہ مسلمان جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہیں. میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر آپ کس چیز میں پیچھے ہیں؟ آپ پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلمان ہیں آج کل اکنالج کیا ہے کہ وہ پیچھے ہیں. کس چیز میں؟ تھوڑے لائک فائنینشلی یا اور ٹیکنالوجی میں اور کئی چیزوں میں. ٹھیک ہے چلیں اوکے، ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. خیر آپ نے جی آپ کے نزدیک بہت ایڈوانس ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے سکسیس جو ہوتی ہے وہ ایسٹس کے حساب سے ہوتی ہے. جی اگر آپ جنتی ہیں تو آپ کی ایسٹس تو ان میچ ہے میری ایسٹس کے مقابلے. نہیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب میں نے ان کو پچھڑا ہوا کہا تو وہ دنیاوی اعتبار سے کہ بھائی طاقت جو دنیا میں جو اس وقت بیلنس ہے طاقت کا وہ نہیں ہے. اب ظاہر اچھا وہ بات میں نے غالباً فلسطین اور اسرائیل کے تناظر میں کہی ہوگی. تو ایک طرف نہتے فلسطینی ہیں اور دوسری طرف وہ اسرائیلی ہیں کہ جن کو بڑی بڑی کمپنیاں ہر روز اعلان کر رہی ہیں کہ 100 ملین میری طرف سے، 100 ملین میری طرف سے. تو ظاہر ہے کہ طاقت کا جو ہے وہ بیلنس وہ تو نہیں ہے. تو اس تناظر میں نے بات کہی ہوگی. ورنہ رہی بات ایمان اور آخرت کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن کے پاس ایسی دولت ہے جو کافر کے پاس نہیں ہے. بالکل. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، غیر مسلم تھے اور ہندو تھے. وہ علماء کی بڑی عزت کرتے تھے اپنے علاقے کی. تو ایک بڑے عالم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی مولانا آپ جب دیکھو یہی کرتے رہتے ہیں کہ شیطان یوں کر دے گا، شیطان آ گیا، شیطان چلا گیا. یہ کیا چکر ہے کہ شیطان صرف آپ کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو ان عالم نے جواب دیا کہ بھائی چٹیل میدانوں میں ڈاکو نہیں جایا کرتے، ڈاکو جاتے ہیں ان جگہوں پر جہاں خزانے رکھے ہوئے ہوں. تو اب یہ بات ہے، تو اس لیے وہ خزانے تو ایمان کے مسلمان کے پاس ہیں. ہاں آپ کے پاس وہ خزانہ نہیں ہے، اس سے آپ محروم ہیں. اس اعتبار سے ہمارا کوئی آپ سے میچ نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس دن ابو شاکر نے اسلام قبول کر لیا، چاہے وہ جھکی میں رہے، چاہے میں جھکی میں بھی رہوں گا، تو ایسٹس میری سب سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے اسلام قبول کروائے اور آپ کو ہمارے ساتھ جنت کا باسی بنائے. ہم تو دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے چلیے. تو پہلے آج حضرت محمد پہ اعتراض ہے میرا. جی یہ حدیث ہے
एक मिनट, ये हदीस नंबर 1572। भाई कौन सी किताब की? सही, मेरे सही बुखारी। मैं इसका आपको लिंक भेज दूं? नहीं, आप मुझे हदीस की किताब का नाम बताएं और नंबर बताएं। सही मुस्लिम 1572। और ये हदीस और भी किताबों में मौजूद है। इसका चैप्टर है डॉग वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जी इसकी मैं थोड़ी सी हाउ इट रिलेट्स टू मी तकरीबन 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, तो फिर आप आगे बढ़िए। जी मेरा पैदा होने से पहले हमारे पास एक गोल्डन रिट्रीवर था। जब मैं पहले दिन अपने स्कूल में जा रहा था और मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के स्कूल लेके जा रही थी, तो वो गोल्डन रिट्रीवर भी साथ में था। जब मैं स्कूल में गया, मुझे छोड़ा टीचर में, मैं वापस जाने को देख रहा था, वो कुत्ता मेरी माँ को भी तरफ भौंक रहा था, रो रहा था कि इसको क्यों छोड़ के जा रहे हैं, साथ क्यों नहीं आ रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही मुझे कुत्तों से मुझे इतना प्यार, मोहब्बत रही है। हाँ, मोहब्बत बचपन से ही रही है। जी, तो ये हजरत मोहम्मद ने जो कुत्तों को मारने का हुक्म दिया और बहुत से कुत्तों को मारा भी गया, तो फिर उन्होंने एब्रिगेट कर दिया इस हदीस को, और काले कुत्तों को जिनके चेहरे पे सफेद दाग है, उनको मारने का हुक्म तो आज भी है। तो आप मुझ जैसे जो कुत्तों से प्यार करते हैं, कैसे हमें कायल करेंगे कि हम हजरत मोहम्मद को एक रोल मॉडल की तरह समझे। ठीक। अच्छा, ये भी तो मुमकिन हो सकता। अच्छा, आपको सुअरों से प्यार है? नहीं ना, मुझे नफरत नहीं है। जो सुअर हैं, आई लव ऑल एनिमल्स। मुझे अच्छा, सब सुअर भी प्यार। ठीक। आई लव ऑल एनिमल्स। अच्छा, जितना कुत्तों से इश्क है, क्या ये मुमकिन है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं, कि आपको उतना ही इश्क सुअर से भी हो जाए? मेरे ख्याल नहीं, क्योंकि कुत्तों की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अलग है। वो ह्यूमंस के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। कुत्तों नहीं, उसे छोड़िए। मैं पूछ रहा हूं कि आपको पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं कि एक इंसान के लिए, चलिए आपके लिए ना हो, एक इंसान के लिए कुत्ते वाला इश्क सुअर से करना पॉसिबल है कि नहीं है? हो सकता है कोई बच्चा सुअर का हो और वो भी, यानी मुआशका जो है वो सुअर से भी किया जा सकता है, एक इंसान कर सकता है। ठीक, कर सकता है। जी हाँ जी ठीक। तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी कुत्ते से इश्क लड़ा रहा है, दूसरा जो है सुअर से लड़ा रहा है, तीसरा गधे से लड़ा रहा है। अब अगर किसी नजरिए और अकीदे के सही और गलत होने का मेयार आपका पर्सनल इश्क हुआ, तो भाई आप तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। ये तो यानी ये ज़ाब्ता आपका शैतानी ही ज़ाब्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी या आप बताएं कि किसी चीज के, किसी अकीदे और नजरिए के सही या गलत होने के लिए क्या ये मेयार होगा कि मुझे सुअर और कुत्ते से इश्क है? एक आदमी जो है अपने बचपन से पैदा होते ही जब उसने रोटी और बोटी खानी शुरू की, तो उसके मुंह में, उसके हलक में सुअर की बोटी डाली गई, और वो 70 साल का हो गया, आपकी उम्र शायद 70 की लग रही है, वो सुअर ही खाता गया। और अब उसको इस्लाम के बारे में पता चला, लेकिन उसको ये चीज रोक रही है कि भाई मैं तो सुअर का गोश्त खाने का आदी और इस्लाम ने हराम कर रखा है, मैं कैसे ऐसे रिलीजन को मान लूं? तो मुझे बताइए कि उसने अपनी बोटियों के चक्कर में उसने हक को गंवा दिया। तो क्या ये दुरुस्त है? मैं यार नहीं, ये देखिए, मैं मीट ईटर हूं, मैं मीट भी खाता हूं। अरे वो मुझे मालूम है, आप सब खा लेते हैं। मेरे कहने का मकसद ये कि ये मेयार दुरुस्त है, बोटियों के चक्कर में अकीदे को गलत करार देना? नहीं, ये तो गलत अकीदा है। बस तो ऐसे ही भाई, ये जो आपका इश्क है कुत्तों से, ये सब्जेक्टिव है। तो इस्लाम में कुत्तों की हुर्मत जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कुत्ता देखें उसको शूट कर दें, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीसों में चूंकि अहकाम जो है वो अलग अलग अदवार में आए हैं, तो बहुत से मौके पर ऐसे भी हैं, बहुत से मौके कि जिनमें कुत्तों का पालना दुरुस्त है। मसलन अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, आपका लंबा चौड़ा फार्म हाउस है, उसकी हिफाजत के लिए आप कुत्ता रखना चाहते हैं, रखिए, कोई मसला नहीं है, शरीयत में इजाजत है, बल्कि हदीस में इजाजत है। इसी तरीके से आपकी बकरियां हैं, आप उन बकरियों की हिफाजत के लिए कुत्ता रखना चाहते हैं, रखिए। आप शिकारी हैं और आप एक ऐसा कुत्ता पालना चाहते हैं जो शिकार में आपकी मदद करे, आप रखें, कोई मसला नहीं है। जिस कुत्ते की मुमानियत इस्लाम में आज भी मौजूद है वो वाला है कि जिससे आपको इश्क हुआ है, कि अपने इश्क के चक्कर में, उस इश्क के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई भी छोड़ रहे थे। ठीक है, वो तो आपके वालिदैन ने मजबूर किया ना कि आप स्कूल चले जाएं, वरना तो आप कुत्ते के चक्कर में स्कूल ना जाते उस दिन, चूंकि इश्क था। तो वही कुत्ते का इश्क आज आपको इस्लाम से रोक रहा है, कल स्कूल से रोक रहा था। तो फिर ऐसी चीजों से इश्क करना क्यों?
नहीं, कुत्ते का इश्क मेरे से था, मेरा इश्क कुत्ते के से था। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये मुआशरा आपको स्कूल से आज इस्लाम और मैं तो सभी कुत्तों से मोहब्बत करता हूँ। आज भी जो मेरे बच्चों के साथ हैं उनके कुत्ते हैं। जी जी, हमारे घर में रही कुत्ते हैं। नहीं वो बात सही है, आपके घर में कुत्ते ही कुत्ते हैं, वो मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, ना मुझे इस पर कोई एतराज है, रखें आप कुत्ते। बात ये है कि कुत्तों का इश्क आपको हक से न रोके, बस इतनी सी बात है। कल स्कूल से रोक रहा था, आज इस्लाम से रोक रहा है। देखिए दोनों के शुरू में यही तलफ्फुज भी दोनों का एक जैसा ही है। अगर उर्दू में आप लिखें अलिफ सीन और इस्लाम लिखे अलिफ सीन। कल स्कूल से रोक रहा था, आज इस्लाम से रोक रहा है। तो ये कुत्तों का इश्क बड़ा खराब है भाई। नहीं, फिर तो आप जो माँ बाप से इस इश्क है उसको भी सब्जेक्टिव कह सकते हैं। नहीं, माँ बाप तो खुद ही स्कूल लेके जाते हैं। आपका कुत्ता आपको स्कूल नहीं लेके जा रहा था ना। नहीं, उसके बाद वो तो स्कूल से रोक रहा था। नहीं, जब वो यूज्ड टू हो गया तो वो भी मुझे स्कूल लेके जाया करता था। तो मुफ्ती साहब, मुझे अगर कोई और अच्छी दलाइल है जी तो मुझे नहीं, आपके लिए ये वाली दलील काफी है। नहीं, ये आपके मेयार की है, बिल्कुल एकदम सूट कर रही है आपको। चलो ठीक है, अगली दफा जब मौका मिले तो और एतराज भी, ये तो एक एतराज आप लेके हैं। ठीक है, हाँ सही है, अगली मौका आपके एतराज भी आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। और चले, अच्छा जी, तो ये अजीब इश्क है। कह रहे हैं कि मेरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हैं। भाई इंसान भी तो होंगे। इसके कल्ब। अच्छा जी, हजरत, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।